So hello everyone. Okay, so today it's going to be a very important topic. So just ensure that all of you, the whole class attends it. Because if you miss today's topic, then it will be hard for you, difficult. It will become very difficult for you to program. So just let me know if I'm clearly audible. It's going to be a very important topic. So just ensure that all of the whole class attends it. Some of you are saying good night in the beginning itself. So it's not good night, it's good evening. Thank you, Shruti, for telling me I'm audible. So I'll be I'll be starting my topic in 1 minute. After exactly 1 minute, we'll start C programming, embedded C programming. तो प्लीज अटेंशन देना प्रॉपरली और कुछ भी डाउट हो तो आप चार्ट विंडो में पूछ सकते हो मुझे. So if I compare now, let me tell you that I have skipped arithmetic and logical equations for time being. That you can see it later. We can see it later. But since you're doing programs in the lab, and as well you have to make one project. That is, you have to submit problem-based assignments in 8051. So we will start with the C programming directly. I'll just let you know. I'll tell you the basics of C programming, and then we will go ahead studying more advanced topics. Now, बहुत सारी चीजें practical में आपने already की हुई है. So, but still I'll brush up. I'll go through all the things which are required for starting with C programming.
So I hope most of you have joined. So if you could just, Bhargavi, let me know how many students are there present actually attending the live lecture, then it will be better. Now let me start here. Okay, so when it comes to C programming, the important thing that we have is compiler. So I'll just draw your attention to this word compiler. Now, till now, we were dealing with assembly programming. So we were interested in assembler. But now, since I'll be using C, we'll be using C, embedded C, we will be dealing with compiler. So the compiler is a program which is responsible for converting your higher level language program to the machine level language program, or the hex file, right? So hex file is a format which we actually burn on the ROM. So where do we store the program? We store the program in the ROM. And what is the size of the ROM? It is 64K maximum size. And if you talk about 8051, inside 8051, so the variant which we use usually has got a 4K ROM. Now this ROM size, EPROM size may vary from one microcontroller variant to another microcontroller. But the maximum size will not change. It will remain the same maximum size that you can have. ROM size which you can have, or the code space which you can have, is 64 KB. Now, why to go for C programming? C programming is less time consuming. Obviously, less time consuming, but it has got larger hex file. So we have to do some compromise. And that I told you already. Like if you are an embedded programmer and if you could code in assembly, then you definitely will be paid higher than that of higher level language coders. I'm talking about the microcontrollers which are 16-bit, 18-bit, 16-bit, 32-bit. These microcontrollers, if you could code in assembly level language, then definitely that would take a lot of expertise. So programming in C is less time consuming, and according to me, it is very easy as well. You don't have to remember many things, and you will realize it when you actually do programming. You will realize that you don't have to remember many things when you're programming in C. And the C program has become a universal language. That means you have started your coding practice in diploma with C coding, C programming, right? Right in the second semester, you started studying C programming. That time, you used C compiler, which was meant for your desktop or the laptop. But now you are using cross compiler. It's C coding only, but earlier that was meant for a desktop, and now you'll be writing the code meant for embedded platform, and that means your microcontroller. So the whole system with the microcontroller we call as embedded system. मैंने आपको पहले ही बोला embedded system क्या होता है? It's a dedicated system for specific purpose. So we use microcontroller to make it compact, and we write a code, and such system is called as embedded system, and such programmer is called as embedded programmer. So for electronics engineers, embedded programmer will definitely be, it's a good opportunity for you to become embedded programmer. So you start with C, and later on you can migrate with some other languages such as Python and all. Okay, so you already started studying C. So but the C which we are going to use for embedded platform or 8051 is called as embedded C. Okay, so most of the things are same. Data types change in C and embedded C, but the structure, the syntaxes, and everything remains the same in case of C. So these are the advantages of writing program in C. It's easier and less time consuming to write assembly language C program. It's easier to modify and update, and you can use code available in function libraries. You have been already doing coding using
Arduino. You're doing it quite some time. See, in Arduino, you must be using these libraries. It's very easy to read the data and display it on the LCD screen using Arduino, and you all have done that. You have sensed temperature, some of you have sensed humidity, or some of you have sensed some other parameter, and you send it to the LCD, and you could able to display it very easily. The code was just a few lines. So that is the advantage of using C. You can use libraries and make your code, the code which you actually write, very, very small. When it gets compiled, it takes a huge size because the libraries also come in and then they get linked, everything, and then you get a hex file. So definitely the code, if you compare the size of the code, the size of the hex code, in case of assembly, the size of the hex code is less, but in case of C programming, size of the hex code is more. But somewhere you have to do trade-off. You have to compromise, right? जल्दी कोड लिख के हो जाता है, मॉडिफाई करना इजी होता है, तो इसके लिए लेस टाइम कंज्यूमिंग जो मैंने बोला, और इसके लिए आप सी कोडिंग को जा रहे हो. कोड भले ही थोड़ा बड़ा हो जाए, आपने अगर ज्यादा मेमोरी यूज किया तो उसमें कॉम्पेंसेट हो जाएगा, वो कोड उसमें रह जाएगा. नो डाउट, जहां पे मेमोरी इज अ कंस्ट्रेंट, जहां पे फास्टर एग्जीक्यूशन यू नीड, देयर यू हैव टू गो फॉर असेंबली कोडिंग, राइट? सो जब आपका लैपटॉप बूट होता है तो उसका जो फॉर्मवेयर रहता है, तो वो फॉर्मवेयर जब आप लिखते हो तो डेफिनेटली आई वुड एक्सपेक्ट माय इंजीनियर्स टू राइट इट इन असेंबली लैंग्वेज. Okay, but otherwise other things and all, whatever things that you require a program and all can be written in higher level languages. C code is portable to other microcontroller with little or no modification. ये एक बड़ा एडवांटेज है C का, क्योंकि C का कोड जेनेरिक कोड जैसे बोलते हैं हम लोग, थोड़ा बहुत इधर उधर चेंजेस किया आपने फाइल्स वगैरह, लाइब्रेरीज के वगैरह, और एक माइक्रो कंट्रोलर का कोड दूसरे माइक्रो कंट्रोलर में चल तो आप ट्रांसफर कर सकते, कोड कर सकते. कभी कभी क्या होता है कि आपकी पूरी सिस्टम, सपोज इफ यू हैव सर्टेन प्रोडक्ट ऑन 805 एंड माइक्रो कंट्रोलर एंड देन यू नीड टू ऐड मोर फंक्शनैलिटीज टू इट, तो जब आप ज्यादा फंक्शनैलिटीज ऐड करना चाहते हो तो कई हायर लेवल माइक्रो कंट्रोलर पे चले जाना चाहते हो, तब ये माइक्रो कंट्रोलर चेंज होता है. तो अगर असेंबली में प्रोग्राम लिखा है 8051 का तो पूरा का पूरा कोड फिर से लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर सी में प्रोग्राम लिखा है तो बहुत सारा कोड का पार्ट सेम रहता है, थोड़े माइनर चेंजेस करके आप दूसरे माइक्रो कंट्रोलर पे वो कोड कर सकते हो. तो द क्वेश्चन इन एग्जाम और वाइवा इज टेल मी एडवांटेजेस ऑफ सी प्रोग्रामिंग और कंपेयर सी programming in C and assembly language programming with respect to microcontrollers. Write it down, the question that can be asked. The next question that could be asked to you, that you describe different data types in C. देखो, ये डेटा टाइप डिक्लेयर करना बहुत जरूरी होता है. सी में जब अपने सेकेंड ईयर में पढ़ा रहेगा सी, तो उसमें से कई डेटा टाइप्स आपने स्टडी किए रहेंगे. स्पेशली दिस अनसाइंड इंट was there at that time here, and given the char data type, unsigned int data type, signed int. Okay, bit and SFR probably you might have not studied, they are specific to embedded C, but other these data types you might have studied. तो क्या होता क्या है डेटा टाइप्स? डेटा टाइप्स में आपको आप कंपाइलर को बोलते हो कि ये जो पर्टिकुलर डेटा मैंने यूज किया है वो किस टाइप का है. वो अनसाइंड कैरेक्टर टाइप डेटा है, साइंड कैरेक्टर टाइप डेटा है, अनसाइंड इंट टाइप डेटा है, साइंड इंट टाइप डेटा है, एसबिट टाइप डेटा है, बिट या एसएफआर टाइप डेटा है. तो ये बताने से क्या होता है, कंपाइलर को पता चलता है कि उस डेटा के लिए कितना स्पेस मेमोरी में अलोकेट करना चाहिए. अगर आपने अननेसेसरीली बड़ा डेटा टाइप यूज किया तो ज्यादा स्पेस, मेमोरी स्पेस वो रिजर्व कर देगा, और आपने वो पूरा यूटिलाइज नहीं किया तो स्पेस वेस्ट हो जाएगा. इसके लिए आपको जितना जरूरी है, अगर से फॉर एग्जांपल इफ योर डेटा, whatever data that is going to be used in the program, if it is just 8-bit data, then you need not go for integer data type, int data type. Okay,
you can just use character data type if it is 8-bit data. बट इंट आपने यूज किया तो प्रॉब्लम होगा, ज्यादा मेमोरी स्पेस रिजर्व होगा और वो वेस्ट हो जाएगा, अननेसेसरीली कोड आपका बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे अलग अलग डेटा टाइप्स आपको दिख रहे हैं। So 8051 is 8-bit microcontroller that everybody knows. 8051 is an 8-bit microcontroller. So natural choice of data type is character, the character data type. क्यों? क्योंकि character data type, now I'm talking about unsigned character. हम लोग remember we will always be using unsigned character. Okay, signed character हम लोग थोड़ा बाजू में रखेंगे, वो हम लोग प्रोग्राम में यूज नहीं करेंगे। signed character दोनों 8-bit के ही है, ranges from 0 to 255, that is 00 to FF, यही रेंज है उसकी, और it is one of the most widely used data type. Okay, तो जो भी जब भी आप काउंटर डिक्लेयर करोगे, काउंटर वैल्यू यूज करोगे या ASCII कैरेक्टर यूज करोगे, आप ये डेटा टाइप मतलब अनसाइंड कैर डेटा टाइप is going to be used. So C कंपाइलर में अगर आपने सिंपली कैरेक्टर लिखा, कैर डेटा टाइप, अनसाइंड नहीं लिखा, तो रिमेंबर वो साइंड कैरेक्टर करके माना जाता है। So we'll always be writing unsigned, keyword unsigned char. Okay. So now unsigned char का एक example लेता हूँ मैं। Now what we will be doing is we'll be studying small programs initially to understand different things. Many of you probably have not practiced enough, so probably may not be knowing different syntax that is used, what exactly is the main function, how to write different loops, you may not be knowing. So I'll try to explain these things in short. Okay. Now the program is write an 8051 C program to send the values 00 to FF to port P1. Okay. So remember, all your programs, C programs, start with this line #include rich51.h. When you're writing program in Kyle, don't forget to add this rich51.h. I'm taking example, standard example, which you use Kyle program, Kyle IDE, and you write a program, you start with #include rich51.h. Now this is called as header file. .h is called as header file. #include, that means आप कंपाइलर को बोल रहे हो कि ये फाइल इंक्लूड करो, कौन सा फाइल, rich51.h, which is already stored there 8051 कंपाइलर में, आपका जो फाइल आईडी है उसमें ऑलरेडी ये प्रेजेंट है। तो इसमें सारे 8051 के रजिस्टर्स, उनके एड्रेसेस, उनके नाम सब अगर लिखे हुए हैं, तो जब भी आप सपोज P1 यूज करते हो प्रोग्राम में, नाउ सी P1 यहाँ पे लिखा है P1, अगर आप प्रोग्राम में P1 लिखते हो तो कैसे कंपाइलर को पता चलेगा कि P1 मतलब पोर्ट 1 है और उसका एड्रेस जो है फॉर एग्जांपल 90 है, राइट? P0 का 80 था, तो दिस इज 90, राइट? सो उसका एड्रेस 90 आपने कहीं पे भी मेंशन नहीं किया प्रोग्राम में कि P1 का एड्रेस ये है, आपने कहीं पे भी नहीं मेंशन किया, तो कैसे पता चलेगा प्रोग्रामर कंपाइलर को कि P1 का एड्रेस 90? That is because of the header file which you are including. Try deleting this header file whenever you are doing practical. Try deleting this header file and check the kind of errors that you get. You will get errors saying something like P1 is unknown, right? So you have to include this rich51.h header file.
Now, then the program starts with the main function. ये C का एक कैरेक्टरिस्टिक है कि वहां पे एक मेन फंक्शन होता है और फिर अलग अलग फंक्शंस होते हैं उसके बाद में जो आप कॉल करते हो मेन फंक्शन में। तो हमेशा ये लाइन भी आपको मिलेगा, मेन ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट। यहाँ पे वॉइड वॉइड लिखा है, वो हम बाद में देखेंगे वॉइड वॉइड क्यों लिखा है। आप सिंपली इफ यू राइट मेन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, then also this program will work. For time being, remember function जो होते हैं वो कुछ पैरामीटर्स पास करते हैं, कुछ क्या पैरामीटर्स लेते हैं। पैरामीटर्स का एक्सचेंजिंग होता है फंक्शन। तो अभी भूल जाओ, आप सिर्फ इमेजिन करो यहाँ पे वॉइड वॉइड है ही नहीं, सिंपल मेन ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट है और फिर ये होता है यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं। तो जो भी फंक्शन का बॉडी होता है ना, ये फंक्शन का बॉडी है, इसको बोलते हैं यहां से लेके यहां तक, इसको बोलते हैं फंक्शन का बॉडी। वो कर्ली ब्रैकेट में होता है। जब आप भी कभी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हो तो आपने हैश इंक्लूड कर दिया, मेन ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ऐसे लिख दिया, फिर ये दो कर्ली ब्रैकेट दे देना और फिर यहाँ पे एंटर मार के जो भी अंदर लिखना है वो लिखते चले जाओ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम ब्रैकेट ओपन तो करते हैं लेकिन क्लोज करना भूल जाते हैं, या फिर प्रोग्राम में कभी कभी दो बार कर्ली ब्रैकेट लगाना पड़ता है। आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल। तो दो बार अगर कर्ली ब्रैकेट लगाया तो दो बार आपको क्लोज भी करना पड़ता है, और ये क्लोज करना अगर भूल गए, जितनी बार आपने ओपन किया उतनी बार अगर आप क्लोज करना भूल गए तो एरर होता है। तो द बेटर प्रैक्टिस इज कर्ली ब्रैकेट लिखो मेन के बाद, उसका क्लोज भी करो और फिर एंटर 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 मार के बीच में लिखते चले जाना। दैट इज अ गुड प्रैक्टिस। आप भूलते नहीं हो कि आपको वो कंप्लीट करना है। अब प्रोग्राम मेन चालू होता है। तो यहां पे देखो, आपने डेटा टाइप डिक्लेयर कर दिया, वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए। कोई भी सी प्रोग्राम जब आप लिखते हो तो यू विल बी यूजिंग सर्टन वेरिएबल। वेरिएबल यहाँ पे कौन सा है, चैट बॉक्स में लिखो। ये जो लाइन दिख रहा है आपको, इस लाइन में वेरिएबल कौन सा है चैट बॉक्स में लिखो फटाफट। आई विल वेट फॉर यू। If you don't know, then write don't know, because I won't be able to know. I'll be waiting for your answer here in the chat box. If I don't see anything, I'll keep waiting. So if you don't know, write don't know. My question is, in this line where my cursor is, what is the variable? You name the variable that you see in this line. I'll just make it green. Check this line. और इस लाइन में वेरिएबल कौन सा है ये बताओ मुझे जल्दी। जल्दी जल्दी बताओ। Are you people there? I hope I'm live. Yes, Neha, correct answer. I hope only Neha is attending the lecture. Rest all, what happened to the others? Sampada has now given the answer, Z. Yes, that is correct. I am happy, Neha, that you gave correct answer. You are the first one to give the answer. See this Z is a variable. Now, how to declare a variable in C code? How to declare it? You have to mention variable का data type. Data type कौन सा है that you have to mention. How it has been mentioned, you see.
I have written, or this book mein, it is written unsigned char, then z, and then semicolon. This is how you write or declare a data type. That means declare a variable. That means in my program, I'm using the variable z for some purpose, which you will learn later on. और वो कौन से टाइप का है? अनसाइंड char टाइप का डेटा टाइप है. मतलब उसका मैक्सिमम वैल्यू 255 होने वाला है. ओके, सो दैट इज डिक्लेयरिंग द वेरिएबल. नाउ अंदर आ जाओ. नेक्स्ट आपको क्या करना है? 0 to 255 नंबर पोर्ट 1 पे भेजना है. तो फॉर दैट आई हैव यूज्ड फॉर लूप. हाउ टू राइट अ फॉर लूप? दैट आल्सो you will have to see carefully how to write a for loop. See, for in bracket, for in bracket z equal to 0, that is initial condition, क्योंकि 0 से 255 चाहिए आपको. सेमीकोलन z is equal to less than 255. That means the maximum value of z can be 255, and then you say z plus plus. That means go on incrementing z from 0 to 255, and for that loop you have written p1 is equal to z. p1 is a port, z is this variable. Now how does this for loop get executed? पहले z equal to 0 हो जाता है, फिर नेक्स्ट लाइन पे आता है कोड. नेक्स्ट लाइन पे P1 पे आउटपुट होता है, फिर Z इक्वल, फिर ये कंडीशन चेक होता है. ये कंडीशन अभी तक हुई नहीं है, तो नेक्स्ट वैल्यू आ जाता है Z बिकम्स 1. वो P1 पे आउटपुट हो जाता है, फिर भी ये कंडीशन आई नहीं है, तो Z बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है. जब वो इक्वल टू 255 हो जाता है, so program comes out of this loop, for loop, and the execution of the program is over. So if you look at the port 1, you will get the values changing from 00 to FF, that is 00 to 255. Now just let me know if everyone is able to hear me clearly. There will be certain lag because Dhruvi is saying there is a problem with her net. I don't know whether the problem is with her net or my net. So I'm asking you whether you are able to listen to me, whether there is no problem of any problem in the stream. Are you able to hear me clearly? Is there any problem? Because I'm using on the mobile also. On that mobile, it's clearly seen. There's no problem at all. So I just assume there is no problem. किसी को कोई problem है? Okay. Yes, Bhargavi, what's the problem? What exactly is the problem? There could be some problem in the chat, but I don't think you have any problem listening to me. Okay, I'll move on. Now the next program, you just pay attention. The next program is send hex values for ASCII characters of 0, 1, 2, 3, 5, A, B, C, and D. Earlier, you were asked to send a number from 00 to FF, but now
you have been asked to send ASCII characters. Okay, now let us understand few more ways of referring data or declaring data, declaring variable. Now the program starts like the earlier one, hash include reg51.h void main void. Okay, void main void लिखा है, अब void भूल भी जाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर ये curly bracket open, curly bracket close. Now here there is a variable called my number, my num, and that variable is of the type unsigned character. That means maximum value of the data that belongs to this variable will be from 00 to 8-bit only. Fine, character. Now how it is declared? Earlier Z was declared simply Z, was written simply Z. But here my number के आगे, my num के आगे आपको यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है, ओपन एंड क्लोज हुआ स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं एरे, ARRAY, एरे। सी में एरे नाम का एक चीज आपने देखा रहेगा, एरे। So array is used to store the multiple data of same type. Now यहाँ पे देखो, आपको ASCII नंबर, ASCII वैल्यूज चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, ASCII वैल्यू के लिए डबल कोट यूज किया। जब भी कोई आपको ASCII वैल्यू स्टोर करना होता है एरे में, तब आपको डबल कोट यूज करने पड़ते हैं, और इसके बीच में आप जो भी लिखोगे उसका ASCII वैल्यू विल बी स्टोर्ड इन अ एरे। 0 का ASCII वैल्यू, फिर 1 का ASCII वैल्यू, फिर आगे आगे चल के D का ASCII वैल्यू, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ASCII वैल्यूज माय नम नाम के एरे में स्टोर हो जाएंगे। एरे मतलब क्या होता है कि मेमोरी स्पेस होती है, एक के नीचे एक के नीचे एक, अगला सक्सेसिव, इस टाइप का एरे। तो जैसे हम लोग लास्ट टाइम असेंबली में भी डीबी यूज किया था, और डीबी करके अमेरिका, यूएसए, दोस वर्ड्स, रिमेंबर दोस वर्ड्स वर सेव्ड at location 200, and that location 200 was initialized with the dptr, the referred by the dptr. Similar thing here, but here you just have to declare an array. मेमोरी में कहां पे स्टोर करने का, कैसे स्टोर करने का, ये सारा काम आपका कंपाइलर देखेगा, लिंकर देखेगा, लोडर देखेगा, ये सारी चीजें वो लोग देखेंगे जो आईडीए की पार्ट है। आपका सिर्फ काम है कि आप एक एरे ले लो, एरे में ये एरे भी मल्टी डिमेंशनल होता है, सिंगल डिमेंशनल होता है, ये स्ट्रेट है, एक ही सिंगल डिमेंशन है उसको, तो इट्स एरे है जिसमें ASCII वैल्यूज 10 ASCII वैल्यू स्टोर की। अब आपके पास चैलेंज ये है कि ये एरे को एक्सेस कैसे किया जाता है। तो वो एरे को एक्सेस करने के लिए हम एक वेरिएबल यूज करेंगे z again, and that array is going to be accessed by for loop, using for loop similar way। जैसे हमने लास्ट टाइम for loop लिखा था वैसे ही for loop लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 10 नंबर्स है, 10 ASCII वैल्यूज है। इसके लिए ये जो for loop है ये 0 से 10 तक रहेगा। So z equal to 0, z equal to greater than equal to less than equal to 10 and z plus plus, मतलब for loop कैसे एग्जीक्यूट होगा, from 0 to 10 एग्जीक्यूट होगा। और ये for loop के अंदर, ये लूप के अंदर एक ही सेंटेंस है करके ओपन ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज किया नहीं उन्होंने। आगे आप देखोगे एक से ज्यादा लाइन रहेंगे तो ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट करना पड़ता है, फॉर के अंदर भी। यहाँ पे एक ही लाइन है करके नहीं किया, तो उन्होंने क्या लिखा है, P1 इज इक्वल टू माई नंबर, एंड ये ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट में Z लिखा है। इसका मतलब होता है कि फॉर लूप जब एग्जीक्यूट होगा तो Z का वैल्यू 0 से लेके 10 तक बढ़ेगा। पहले 0 होगा, पहले जब 0 होगा तो 0 वाला जो नंबर है 0th पोजीशन पे,
ये वाला, ये नंबर, ये आएगा इधर और इधर से जाएगा इधर, मतलब P1 में। नो जेड और इंक्रीमेंट होगा 1 होगा, 10 और 10 के साथ कंपेयर होगा, 10 से नीचे ही है 1। तो फिर से ये जो है सेकेंड नंबर का, वो इधर और इधर से इधर, फिर ऐसे बढ़ते 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 आगे 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 चला जाएगा। और जब जेड 10 होगा तो 10th जो डेटा है आपका, वो डेटा आएगा ऐसे और ऐसे, और फॉर लूप खत्म होगा, एग्जीक्यूशन फॉर लूप का खत्म होगा, प्रोग्राम का जो ये है पॉइंटर है बाहर आ जाएगा, मतलब प्रोग्राम एग्जीक्यूट पूरा हो जाएगा। सो दिस इज हाउ योर सी प्रोग्राम विल गेट एग्जीक्यूटेड। सो हमने क्या क्या सीखा, ये दो प्रोग्राम में हमने क्या क्या सीखा। सी प्रोग्राम में हेडर फाइल सीखा, मेन फंक्शन कैसे डिक्लेयर करते हैं सीखा, फॉर लूप कैसे यूज करते हैं वो देखा, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं ये देखा, ये सिंपल वेरिएबल है, और ये एरे कैसे डिक्लेयर करते हैं वो देखा, और एरे को कैसे एक्सेस किया जाता है वो भी देखा। दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोग्राम्स। ये प्रॉपरली ध्यान में रखना चाहिए। मैंने एरे यूज किया तो अच्छा, एरे को एक्सेस ऐसे किया जाता है फॉर लूप यूज करके। So all these things you just need to remember properly. These are the building blocks. That's why I said this lecture is a very important lecture. If you miss this, you will not be able to write C program properly. Programs याद नहीं किए जाते, ध्यान में रखना। कोई भी प्रोग्राम आप याद नहीं करोगे एग्जाम में जब पूछा जाता है तब, या फिर कभी भी जब प्रोग्राम याद करोगे तो कैसे चलेगा, क्योंकि बाद में जब आप इसमें जाओगे, इंडस्ट्री में जाओगे, तो सिंपली ये प्रोग्राम नहीं रहेगा, वहां पे प्रॉब्लम रहेगा, प्रोग्राम नहीं प्रॉब्लम। एंड दैट प्रॉब्लम यू नीड टू एड्रेस बाय यूजिंग प्रोग्राम, रिमेंबर दिस। तो आपको वो प्रॉब्लम जब आप सॉल्व करने जाओगे, उसके लिए कोड लिखने जाओगे तो प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपने रट्टा मारा है। तो रट्टा नहीं मारना, समझ के लेना है। फ्लो चार्टिंग कैसे करना है, उसको एल्गोरिथम कैसे लिखना है, फिर फ्लो चार्ट कैसे बनाना है, फिर प्रोग्राम कैसे लिखना है। डायरेक्टली जाके जब बड़ा छोटे छोटे प्रोग्राम है करके हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, लेकिन जब प्रोग्राम बड़ा होता है तो आपको पहले एल्गोरिथम मतलब स्टेप्स लिखने पड़ते हैं, फिर फ्लो चार्ट बनाना पड़ता है, और फिर प्रोग्राम होता है। सिस्टमैटिक स्टेप्स ऑफ राइटिंग प्रोग्राम। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड समथिंग मोर। I hope you all are there attending this lecture very seriously, because this is where you are studying basic building blocks of C programming. Next program में हम कुछ extra सीखेंगे, वहां पे है toggle. This program is the favorite program. Toggle all the bits of P1 continuously. तो toggling मतलब क्या है हमने देखा, मतलब आपने पहले बिट्स है P1 के 0101 0101, which is nothing but 55. So you just make it 1010 1010. That is nothing but AA, and keep doing it continuously. That is called as toggling. Keep doing it continuously. That is called as toggling. So this is what exactly has been asked. Like you toggle the port P1, bits of port P1 continuously. So once again, to start with, same thing, hash include, भूलना नहीं, main function, open bracket, close bracket. Now here you can see something more. Now यहाँ पे दो curly bracket है, ये for loop जब यूज किया है उसके अंदर भी एक open bracket, close bracket है। वो तब लिखा जाता है जब for loop के अंदर एक से ज्यादा इंस्ट्रक्शंस हो, तब लिखा जाता है एक्स्ट्रा कर्ली ब्रैकेट। नाउ रिमेंबर दिस थिंग, आई फॉरगॉट टू मेंशन, एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये देखो, ये है सेमीकोलन। तो ये जो हम लोग फॉर के आगे सेमीकोलन नहीं है, लेकिन जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो आप सेमीकोलन देते हो। ये जो स्टेटमेंट्स लिखे, इंस्ट्रक्शंस आपने लिखे हैं, लाइंस, कोड के लाइंस लिखे हैं अंदर,
वहां पे आपने सेमीकोलन दिया है, तो सेमीकोलन सिंपली अगर आप भूल जाते हो तो भी प्रॉब्लम हो सकती है, आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, आपको एरर्स मिलेंगे और आपको समझ में नहीं आएगा कहां पे एरर है, छोटा सा सेमीकोलन कहीं पे मिसिंग रहेगा। तो इट्स बेस्ट प्रैक्टिस तभी के तभी सेमीकोलन याद रखना, थोड़ी प्रैक्टिस के बाद वो हो जाएगा। अब सिंपली टॉगल करना है तो क्या लिखा है, P1 is equal to 55. Now the see 0x 55. This is the way of writing hex value in C. असेंबली में हम लोग h लिखते थे आगे, P1 is equal to hash 55h, यहां पे वैसे नहीं लिखा जाता है, P1 is equal to 0x 55। कंफ्यूज मत करना, इधर का उधर उधर का इधर मत करना असेंबली में और सी में। जब कभी असेंबली प्रोग्राम पूछा है तो सी वाले जो सिंटैक्स है वो याद यूज नहीं करना, या सी में असेंबली की सिंटैक्स यूज नहीं करना। और फॉर लूप कुछ अलग तरीके से लिखा, देखो फॉर दो सेमीकोलन दिया उन्होंने सिर्फ, इसका मतलब है यहाँ पे कुछ फॉर, क्योंकि वैल्यू क्या लिखोगे ना, अगर z करके सपोज आपने एक वेरिएबल यूज भी कर लिया पिछले दो प्रोग्राम के जैसे, तो z इक्वल टू 0, लास्ट वैल्यू क्या लिखोगे, आपके पास है ही नहीं, क्योंकि आपको बोला क्या गया है कंटिन्यूअसली फॉर एवर, सो यू कैन नॉट राइट इनफाइनाइट देयर। so what you can do is semicolon semicolon, leave it blank in the bracket, so it will keep on doing it forever. There's another way of writing forever also that we will see in the coming programs. So I hope this is very clear to you. See, दो लाइन का कोड हो गया, सिंपली इसमें मतलब मेन लाइन दो ही है, दो लाइन के कोड में आपको पूरा प्रोग्राम हो गया, आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, और राइट आपको नंबर चेंज करना है, ये टॉगलिंग वाले दूसरा कोई कॉम्बिनेशन देना है, आप 55 की जगह पे कोई और लिखो, सब जीरो और सब एफ भी लिख सकते हो, टॉगलिंग ये भी होता है, सब आप 0000 करो और सब 111111 एक साथ करो, ये भी टॉगलिंग ही है। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, आई विल मूव ऑन फर्दर। तो ये सब था, ये सब अनसाइंड कैर है, देखो हम लोग अनसाइंड कैर देख रहे हैं, ठीक है। नाउ साइंड कैर, नाउ साइंड कैर में भी 8 बिट ही डेटा टाइप होता है, ये भी 8 बिट ही है, लेकिन इसमें क्या है साइंड है, तो जो D7 बिट है वो यूज होता है वेदर द नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव ये बताने के लिए, और वैल्यू जो होता है वो 0 to 255 नहीं होता है, इट इज फ्रॉम -128 to 127, because only 7 bits are used, not 8 bits. 8th bit, that the last bit is used for what? It is used for representing the sign. That's why it's called as signed char. But in all our programs, we are going to stick to unsigned char only. Okay. Now, कहां पे signed char use होगा, unsigned char use होगा? Suppose टेम्परेचर, आपको टेम्परेचर डिस्प्ले करना है, और जो वेरिएबल आप यूज करोगे टेम्परेचर के लिए, क्योंकि टेम्परेचर कैन गो इन माइनस, राइट, तो माइनस डेटा जब आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप साइंड कैर करो, रिमेंबर दिस। और भी कोई अगर है मतलब डेटा जो माइनस में जा सकता है तो भी आप कैन यूज दिस साइन। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आई विल गिव सर्टेन पैरामीटर लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एज, like this, population, marks, and you will be asked to define or select a proper data type for that type of data. टाइप कौन सा आएगा, डेटा टाइप डिक्लेरेशन क्या रहेगा। जैसे अगर मैंने टेम्परेचर आपको दिया तो आपको साइंड कैर यूज करना है, क्योंकि टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। सिंपली कैर लिखोगे तो इट इज साइंड कैर, रिमेंबर। For example, this program is written to send the values
from 04 to +4 to port 1. Now when you have to write like this, signed numbers use करने हैं आपको. पहला लाइन सेम, सेकेंड लाइन सेम, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर आपको नंबर डिक्लेयर करना है यूजिंग एरे. एरे का डेटा टाइप नोट करो, यहाँ पे कैर लिखा है, अनसाइंड कैर नहीं, क्योंकि एरे में जो नंबर स्टोर करने वाला हूं मैं वो माइनस नंबर भी है प्लस नंबर भी है. ओके, सो +1 -1 +2 -2 लाइक दिस. और फिर ये एरे डिक्लेयर किया, फिर हमेशा की तरह एरे एक्सेस करो, एक वेरिएबल यूज करो, फॉर लूप करो और एरे एक्सेस, वो सेम है. सिर्फ चेंज कहां पे है? सिर्फ चेंज यहाँ पे, डेटा टाइप सिलेक्शन. तो डेटा टाइप सिलेक्शन, ये चौथे प्रोग्राम में हमने डेटा टाइप सिलेक्शन मतलब माइनस के लिए कैसे लिखने का, कैर कैसे यूज करने का, वो सीखा. अब नेक्स्ट डेटा टाइप आता है unsigned and signed int. Int for integer. Okay, int. So this int is 16 bit. इसका वैल्यू जो है 16 बिट. कैर का वैल्यू कितना था? 8 बिट, राइट. अनसाइंड कैर का कितना था? 8 बिट. वैसे अनसाइंड इंट या इंट का वैल्यू होता है 16 बिट. 16 बिट मतलब फ्रॉम 0000 टू FFFF. ये मैंने हेक्स में लिखा और ये मैंने लिखा डेसिमल में, 65,535. So better you remember this number, very important. जैसे आप FFFF बोलते हो, very easy to remember in hex, वैसे डेसिमल में होता है 65,535. इसको ही हम लोग मेमोरी में अगर रेफर करें तो 64 KB मेमोरी जो बोलते हैं, 64 KB मेमोरी मतलब इतना बाइट्स, ये भूलना नहीं कभी. तो 16 बिट वेरिएबल जब भी आपको डिक्लेयर करना है, डिफाइन करना है, तो इट हैज टू बी अनसाइंड बिट. जब भी आपको मेमोरी एड्रेस डिक्लेयर करना है या काउंटर वैल्यू मोर देन 256 डिक्लेयर करना है, तो ये डेटा टाइप यूज करना है. रिमेंबर दिस. ओके, सो यू विल ऑलवेज बी रिमेंबरिंग दिस. साइंड इन अगर रहेगा तो 15 बिट्स यूज होंगे और 16th बिट जो है that is for representing the sign, and the value or the magnitude will change from -32,768 to +32,767. आधा इधर आधा उधर. Okay, yeah. I guess Nisha, have you joined late? I can see hello sir just now. Nisha Prajapat. Anyway, ठीक है. Then the next data type is single bit type data. Single bit type data. तो उसके लिए कीवर्ड है sbit. जब आपको कोई एक बिट डिक्लेयर करना हो तो आप sbit यूज करते हो. और कहां पे लिखा है देखो, void के. रिमेंबर दिस, ये डिक्लेरेशन आप सबसे ऊपर कर लो ताकि नीचे जब भी आप माई बिट यूज करोगे कोई भी फंक्शन में, तो वो माई बिट का मीनिंग P1.0 ही होगा हमेशा. तो इसके लिए उसको ऊपर लिखा हुआ है, सबसे ऊपर लिखा है, इंक्लूड के बाद में लिखा हुआ है. ठीक है. सो माई बिट करके आपने एक नाम दे दिया, किसको दिया? ये मतलब ये वेरिएबल है आपको. माई बिट इज अ वेरिएबल विच यू हैव यूज्ड फॉर व्हाट?
P1.0 पोर्ट 1.0 डिफाइन करने के लिए, यहाँ पे पॉइंट नहीं, देखो ओके, आप रेस टू के लिए जो टिल्ट करके जो आप यूज करते हो वो यूज किया है, तो ऐसे लिखते हैं जब आप 1.0 जो बोलते हो पोर्ट 1.0, ओके, एंड दैट इज बीन डिक्लेयर्ड एज sbit, सिंगल बिट, बिकॉज इट्स सिंगल बिट। देन बाकी का होता है, इसमें क्या करना था आपको, टॉगल करना था 50,000 टाइम्स। तो सिंपली है, एक 50,000 है, नंबर 255 से बड़ा है, तो इसके लिए z इंट करके आपने अनसाइंड इंट करके डिक्लेयर किया, z इक्वल टू 0 50,000 लिखा, माई बिट 0 किया, माई बिट 1 किया, तो व्हेन z बिकम्स 1, मतलब पहले तो 0 है, तो ये 1 और 0 एक बार करके लेगा, फिर वो 1 होगा, फिर एक बार करके लेगा, 2 होगा, एक बार करके लेगा, ऐसे ऐसे करते करते 55,000 times it will be done. 50,000 times, I'm sorry. That bit will be 1 and 0. Will be 1, 1 and 0. ठीक है, तो ये सारे एसएफ डेटा टाइप्स है। यहाँ पे एसएफआर करके भी एक डेटा टाइप है, ऑब्वियसली एज अ नेम सजेस्ट दैट एसएफआर डेटा टाइप इज यूज्ड फॉर व्हाट, RAM addresses, for declaring RAM addresses from 80 to FF, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर के। बाकी हमने बिट देखा, एसबिट देखा, इंट, ये दोनों इंट दोनों कैर भी देखे। एसएफआर भी सिंपली जब आप एसएफआर डिक्लेयर करते हो तो आपको एसएफआर यूज करना है। Now how to create a time delay in C? This time delay is everywhere. ये हमने ऑलरेडी टाइम डिले कैसे लिखने का, यूजिंग djnz फंक्शन, वी ऑलरेडी सीन ना, djnz, ये यूज करके फंक्शन नहीं, ये इंस्ट्रक्शन जो है असेंबली में, हाउ टू यूजिंग दिस इंस्ट्रक्शन वी हैव रिटन टाइम डिले। नाउ वी विल सी हाउ टू राइट टाइम डिले इन सी। एक सिंपल लूप यूज करेंगे और ये लूप में टाइम डिले यूज करना है, ओके। देखो, नाउ टाइम डिले जो आप लिखोगे वो एक्यूरेट नहीं होता है, अलग अलग कंपाइलर्स, अलग अलग माइक्रो कंट्रोलर के लिए क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड होता है, तो उसके हिसाब से कितना टाइम डिले मिलेगा वो चेंज होगा, बट सम टाइम डिले दैट वी आर गोइंग टू कंसीडर। सो द प्रोग्राम इज write a C program to toggle bits of P1 continuously forever for with some time delay. How to write that time delay? You can see code once again here. ये मेन फंक्शन इंक्लूड हो गया, मेन फंक्शन चालू हो गया, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट किया, अनसाइंड इंट डिक्लेयर किया, फॉरएवर चाहिए मुझे, फॉरएवर के लिए फॉर लूप यूज किया, फॉर लूप बड़ा है करके ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट किया। अब मुझे क्या करना है, P1 को 55 देना है, मतलब 01 01 01 01 देना है, और कुछ बीच में टाइम डिले चाहिए उसको ए करने से पहले, तो कुछ जो टाइम डिले वो ऐसे है, देखो, फॉर x इक्वल टू 0, x लेस देन 40,000, x प्लस प्लस, x क्या है, अनसाइंड इंट टाइप है, तो कुछ टाइम वेस्ट होगा, अंदर कुछ नहीं, इधर कुछ भी नहीं है, देखो। तो ये लूप के लिए आपको वो लूप एग्जीक्यूट होगा, और फिर वो एग्जीक्यूट होने के बाद P1 इक्वल टू ए होगा, मतलब इतनी बार P1 ए होगा, और फिर एक लूप लिखा उन्होंने इतनी बार, क्योंकि ये लूप ऐसे एग्जीक्यूट होते रहेगा, तो ये जो पूरा फॉर के अंदर जो आपने लिखा है वो पूरा एग्जीक्यूट होते समय ये फॉर लूप जो है वो 2 बार एग्जीक्यूट होगा और बीच में डिले क्रिएट करेगा। रिमेंबर दिस, सो दिस इज हाउ यू राइट अ डिले। अगर दूसरा भी इधर फॉर लिख सकते चाहिए तो, और ज्यादा डिले चाहिए तो z लिखो, z इक्वल टू 0, z लेस देन, फिर से 40,000 करो, एंड z प्लस प्लस करो, और ज्यादा डिले मिलेगा, इधर भी फॉर का लूप और एक यूज करो, z इक्वल टू 0,
तो ये टाइम डिले क्रिएट करने का तरीका है सी प्रोग्रामिंग में, लेकिन ये एक्यूरेट नहीं है क्योंकि फ्रॉम कंपाइलर टू कंपाइलर इट में चेंज। नाउ एक और तरीका इन्होंने दिखाया है आपको, वो तरीका देखो, समथिंग मोर, एंड इन द मजीदी टेक्स्ट बुक this method is used again and again, so you have to understand this method clearly. Now here you see what it is saying: write a C program, toggle bits of P1 continuously with 250 millisecond delay. मतलब आप 1 का 0 0 का 1 जो कर रहे हो उसमें डिले कितना चाहिए आपको? 250 मिलीसेकेंड। तो रिमेंबर ये जो प्रोग्राम लिखा है उन्होंने उसमें 250 मिलीसेकेंड अज्यूम किया है कि ये जो उन्होंने डिले का कोड लिखा है उसमें 250 मिलीसेकेंड डिले जनरेट कर रहा है उनका माइक्रो कंट्रोलर। ये यूनिवर्सल चीज नहीं है। रिमेंबर, अगर आप टाइमर यूज करके डिले लिखते हैं जो हम बाद में लिखेंगे तो आपका एक्यूरेट डिले मिलेगा, लेकिन ये जो मेथड है ये फॉर एग्जांपल उन्होंने बताई है। इसमें क्या क्या नई चीजें सीख रहे हो आप? देखिए, ये हमारा हैश इंक्लूड तो हो ही रहा है, लेकिन यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट उसके बाद वॉइड लिखते थे, मेन मतलब मेन फंक्शन चालू करते थे, फिर ये ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट मेन का होता था। अब आपने एक एक्स्ट्रा लाइन लिखी है यहाँ पे, आपने एक फंक्शन, इसको बोलते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन, इसको बोलते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन। तो आपने क्या किया है, आपने इस प्रोग्राम में एक और फंक्शन यूज किया है जो नीचे लिखा है, मेन के बाद लिखा है, एंड दिस इज दिस फंक्शन। ये फंक्शन आपने, इसका नाम डिले है, ये आपने नीचे लिखा है पूरा, ये पूरा आपने नीचे लिखा है, ये पूरा आपने नीचे लिखा है, और इस फंक्शन को ऊपर डिक्लेयर करके रखा है। मतलब ये फंक्शन का जो फर्स्ट लाइन है, ये फंक्शन का फर्स्ट लाइन यहाँ पे, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आपने उसको डिक्लेयर किया हुआ है। लेकिन डिक्लेयर कैसे किया है? फंक्शन का नाम लिख के डिक्लेयर किया। कैसे लिखा है? void ms delay इन ब्रैकेट, एक इंटीजर है, इन ब्रैकेट अनसाइंड इंड लिखा है। आपको पता चलेगा बाद में कैसे होता है ये फंक्शन, कैसे एग्जीक्यूट होता है। तो इस वाले प्रोग्राम में देयर आर टू फंक्शन, एक मेन फंक्शन, ये जो है ये मेन फंक्शन है, और ये जो है ये दूसरा फंक्शन है। जैसे हम लोग सब रूटीन लिखते थे, असेंबली में सब रूटीन लिखते थे। व्हाट इज सब रूटीन? इट्स पार्ट ऑफ द प्रोग्राम व्हिच इज कॉल्ड अगेन एंड अगेन। लाइकवाइज दिस इज डिले फंक्शन, so you can equate this with, compare this with the subroutine in assembly। तो ये भी हम लोग बार बार कॉल करेंगे। ओके, पहले देखते हैं ये सब रूटीन कैसे लिखा गया। सब रूटीन में आपने लिखा अनसाइंड इंट आई टाइम। नाउ आई टाइम इज अ वेरिएबल, जस्ट रिमेंबर आई टाइम इज अ वेरिएबल। तो आपने अंदर इस फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल यूज कर रहे हो आप, आई और जे। आई और जे यूज करके आप दो फॉर लूप लगा रहे हो, जैसे मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था। तो पहला फॉर लूप है आई इक्वल टू 0, आई लेस देन आई टाइम, मतलब ये आई टाइम इधर आपने लिखा, आई प्लस प्लस, और फिर नेक्स्ट उसी में आया जे इक्वल टू 0, जे इज लेस देन, इक्वल टू नहीं है, लेस देन 1275 जे प्लस प्लस। तो ये दो लूप आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग डिले। ये 1275 कैसे आया? ये उन्होंने जो प्रोसेसर, जो ऑथर है, उन्होंने जो प्रोसेसर यूज किया, कंपाइलर यूज किया, वो आपको 1575 अगर यूज 1275 अगर यूज करते हो
तो ये लूप जब एक बार एग्जीक्यूट होता है तो आपको डिले मिलता था 1 मिलीसेकेंड का। इसके हिसाब से उन्होंने 1275 कैलकुलेट किया। तो व्हाट इज दिस आई टाइम, फ्रॉम वेयर इज गोइंग टू गेट द वेयर फ्रॉम वेयर दिस फंक्शन इज गोइंग टू गेट द आई टाइम वैल्यू, वैल्यू ऑफ आई टाइम क्या होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने लिखा है P1 इक्वल टू 55 टॉगल करने के लिए और P1 इक्वल टू 88। अब इसके बीच में आपने फंक्शन कॉल किया है, इसको बोलते हैं कॉलिंग द फंक्शन, फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल कैसे किया, फंक्शन का नाम लिखा ms डिले, ये ms डिले, ये फंक्शन का नाम है, यहाँ पे भी ms डिले है, फंक्शन का नाम है, और ब्रैकेट में 250 लिखा। अब ब्रैकेट में जब 250 लिखते हो तो क्या होता है, ये जो 250 नंबर है that gets assigned, that is passed to this variable called I time। ओके, तो I time बनता है 250, तो यहां पे वैल्यू आ जाता है एग्जीक्यूशन के वक्त 250, और ये लूप एग्जीक्यूट होता है। ये पहला वाला लूप 250 टाइम्स होता है, सेकेंड वाला लूप 1275 टाइम्स होता है, और ये लूप एग्जीक्यूट होता है और आपको 250 मिलीसेकेंड का डिले मिलता है, 250 मिलीसेकेंड का डिले मिलता है। तो ये जो हो रहा है ना यहाँ पे, मतलब यहां से ये पैरामीटर, ये फंक्शन ने, ये वाले फंक्शन ने पैरामीटर इसको पास कर दिया, पैरामीटर पासिंग टेक्निक। तो फंक्शन में आप जब कॉल करते हो तो आप पैरामीटर पास कर सकते हो, जो फंक्शन आपने कॉल किया है उसको। और फिर और एक नया चीज इसमें सीखने को मिलता है, दैट इज व्हाइल वन। अभी फॉर लूप नहीं यूज किया उन्होंने, यहाँ पे व्हाइल वन और ओपन ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट वाला लूप यूज किया है। पहले वाले एग्जांपल में हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे फॉर लिखा था, फॉर 2 बार कॉलम फॉर लूप, और फिर ओपन ब्रैकेट किया था कर्ली ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट किया था। अब फॉर की जगह पे व्हाइल यूज किया और ब्रैकेट में लिखा है 1, व्हाइल 1। तो व्हाइल का फंक्शन ऐसे रहता है कि जो भी ब्रैकेट में आप लिखते हो वो कंडीशन, व्हाइल लिखते हो और ब्रैकेट में कंडीशन लिखते हो, तो वहां पे 1 लिखा है, तो ये कंडीशन जब ट्रू रहता है, लिसन टू बी केयरफुली, व्हाइल लिखने के बाद आप ब्रैकेट में जो भी कंडीशन देते हो वो जब तक ट्रू है तब तक व्हाइल के अंदर, मतलब ये वाला व्हाइल के अंदर वाला बॉडी ये है, जो भी आपने लिखा है that keeps on getting executed। ये व्हाइल लूप का फंक्शन है, व्हाइल वन का फंक्शन है, या व्हाइल लूप भी बोल सकते। फॉर का कैसे है, फॉर में आप कंडीशन देते हो, 3 चीजें देते हो, इनिशियल कंडीशन, फाइनल कंडीशन, और एक्शन क्या होनी चाहिए, बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए, जेड प्लस प्लस जेड माइनस। व्हाइल में आप क्या करते हो, व्हाइल लिखते हो और ब्रैकेट में कंडीशन देते हो, जब तक वो कंडीशन ट्रू है तब तक व्हाइल के अंदर जो आप लिखते हो चीज वो एग्जीक्यूट होती रहती है, होती रहती है। और जब व्हाइल 1 करके लिखते हो, दिस 1 मीन्स ट्रू, दिस इज ऑलवेज ट्रू, सो दिस कीप्स ऑन गेटिंग एग्जीक्यूटेड फॉरएवर। वो प्रोग्राम चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, कभी रुकेगा नहीं। तो हमेशा वो एलईडी जो है, अगर आपने पोर्ट्स को कनेक्ट किए तो वो ब्लिंक होते रहेंगे। दैट इज द फंक्शन ऑफ व्हाइल लूप। दिस इज न्यू थिंग, ये नया है जो हमने अभी ये प्रोग्राम में सीखा, व्हाइल लूप। और ये प्रोग्राम में हमने 2 फंक्शंस यूज किए, एक फंक्शन है मेन और दूसरा फंक्शन जो है वो है डिले का। और हमने ये देखा कि मेन फंक्शन जब आप लिखते हो तो दूसरा वाला फंक्शन कैसे कॉल करने का, तो कॉल कैसे करते हैं उसका नाम जो है वो यहाँ पे लिख देते हैं ms डिले,
और उसमें जो वैल्यू चाहिए वो वैल्यू आप उसको पास ऑन करते हो। ये बिना पास ऑन किए भी लिखा जा सकता है, बट ये फैसिलिटी एक्स्ट्रा किया उन्होंने कि मैं जो बोलूं नेक्स्ट टाइम अगर मैंने 500 चाहिए तो मैं यहाँ पे 500 लिखूंगा और ये 500 का वैल्यू आई टाइम को असाइन हो जाएगा। अगर मैं सिंपली ये सब नहीं लिखता और सिंपली एमएस डिले ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट करके यहाँ पे एक हमेशा का वैल्यू लिख देता तो क्या होता, वो डिले फिक्स हो जाता। मतलब मुझे वेरिएबल डिले नहीं मिलता, मतलब जब भी चाहिए नेक्स्ट टाइम मैं मॉडिफाई नहीं कर सकता था। तो यहाँ पे क्या करना पड़ा, नेक्स्ट टाइम मुझे मॉडिफाई चाहिए तो सिंपली यहाँ पे ये चेंज करूंगा, मुझे ये प्रोग्राम को हाथ लगाने का जरूरत नहीं है। सो दिस इज हाउ डिले is used, delay function is used. Now in this program, if you have any doubt, quickly you type your question and ask me if you have any doubt. Ruby, you were saying doubt नहीं रहेगा तो पूछने का कि नहीं पूछने का, आप अभी पूछो मुझे डाउट। आप वहां पे लिख सकते हो तुरंत क्वेश्चन, क्या डाउट है आपको। इस प्रोग्राम में अगर कुछ समझा नहीं है तो आप लिखो। Okay, so next program, LEDs are connected. LEDs are connected to bits P1 and P2. दो पोर्ट्स है P1 P2, LED कनेक्टेड है। सी प्रोग्राम लिखना है आपको और LED पे 00 टू FF मतलब 8 बार 0 to 1111 इन बाइनरी आपको डिस्प्ले करना है। वेरी सिंपल प्रोग्राम। तो आप स्टार्ट करोगे इंक्लूड से। नाउ यहाँ पे LED ये डिफाइन किया गया है P2 पोर्ट को, ओके P2 पोर्ट को डिफाइन किया गया है और यहाँ पे सिर्फ P1 पोर्ट के लिए उन्होंने प्रोग्राम लिखा है, कुछ टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, एनीवेज दैट डजंट मैटर। सो सिर्फ P1 कंसिडर करो, यहाँ पे P1 लिखो, अब P1 कंसिडर, ओके नहीं, सिर्फ P2 पोर्ट को LED करके नाम उन्होंने डिक्लेयर किया है, P1 को P1 ही बोलने वाले हैं। तो यहाँ पे मेन फंक्शन चालू होता है, यहाँ पे P1 इक्वल टू 00 किया आपने, डायरेक्टली P1 इक्वल टू 00 8 बिट 00 किए, LED इक्वल टू 0 लिखा, इसका मतलब है P2 पोर्ट को आपने 00 किया, यहाँ पे 00 डबल लिखने की जरूरत नहीं है, 0 लिख सकते हैं। दोनों को क्लियर किया, फिर यहाँ पे फॉरएवर लूप फॉर यूज किया और ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट लिख के यहाँ पे लिखा P1 प्लस प्लस एंड LED प्लस प्लस। ये प्लस प्लस मतलब इंक्रीमेंट करते जाओ। तो ऑब्वियसली दोनों पोर्ट जो है वो बाइट साइज के हैं, मतलब 8 बिट्स के हैं, तो जो बढ़ते जाएंगे तो मैक्सिमम 111111 तक ही जाएंगे। तो ये प्रोग्राम आपने इस तरह से लिया, आपने उसको अलग तरीके से भी लिख सकते हो फॉर लूप यूज करके। ये प्लस प्लस लिखते हो इज शॉर्टकट टू गो ऑन इंक्रीमेंटिंग सर्टन वेरिएबल। void ms delay रिपीट करो, ठीक है ध्रुवी। ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू कैन वॉच दिस वीडियो अगेन, ट्राई टू अंडरस्टैंड जो ms delay फंक्शन लिखा है वो कैसे लिखा है और वो फंक्शन कैसे कॉल हुआ है। ट्राई टू अंडरस्टैंड वंस अगेन। टुमारो ऑल्सो इफ यू डोंट, if you feel that I need to explain it again, I'll do it in a class. क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट इंपॉर्टेंट है, मीन्स वहां उसे यूज करना पड़ेगा। यस अगर आपने ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट नहीं किया फंक्शन को, ईच फंक्शन का
पहले डिक्लेरेशन होता है, फिर बॉडी होता है। तो बॉडी ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट करके डिक्लेयर करना ही पड़ेगा, अगर नहीं किया तो एरर आएगी। फिर आप एरर निकालते बड़े बैठोगे, आपको पता नहीं चलेगा एरर को। यहाँ पे भी ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट यहाँ पे किया हुआ है, इधर भी ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट किया हुआ है। वॉइड को भी इधर ओपन ब्रैकेट, मतलब मेन फंक्शन को भी ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट किया है। तो जितने आप ओपन करते हो उतने ही क्लोज करने पड़ते हैं, रिमेंबर। Now I'll move on to the next program quickly. Bit addressable, मतलब आपने बाइट देखा, अभी पूरा का पूरा पोर्ट आपने एक्सेस किया। अब सिर्फ एक बिट एक्सेस करना है तो क्या करना है? एक बिट कहां पे? P2.4 बिट आपको कंटिन्यूअसली टॉगल करना है। तो ये 2.4 जो है वो डिक्लेयर किया माई बिट एस बिट करके, while वन लूप यूज किया यहाँ पे, और माई बिट इक्वल टू 1, माई बिट इक्वल टू 0 कंटिन्यूअसली किया। वेरी सिंपल। बस आपको डिक्लेयर जो करना है पूरा का पूरा बिट रहेगा तो एस बिट करना है, और पूरा अगर एस बिट अगर 8 बाइट वाला है तो जैसे पहले दिखाया था, जैसे बाइट डिफाइन करके लेना है और उसको डिक्लेयर करना है। दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल। ये भी बिट एड्रेसेबल है। हाँ, यहाँ पे एक और यूज होता है इसके लिए, इफ एल्स। ये देखो, अभी यहाँ पे कंडीशन चेक होती है, इफ एल्स, ये नया चीज है इस प्रोग्राम में। तो हमने अलग अलग लूप सीख रहे हैं हम लोग। पहले हम लोग ने कौन सा लूप सीखा? फॉर लूप सीखा। फिर कौन सा सीखा? व्हाइल सीखा। फिर अभी तीसरा आता है इफ एल्स। तो इफ एल्स का कंडीशन क्या है देखो, मॉनिटर, क्वेश्चन इज मॉनिटर मतलब चेक करते रहो बिट P1.5, अगर वो हाई है तो 55 डेटा सेंड करो। कहां पे? P0 पे। अगर नहीं है हाई, मतलब लो है, तो AA सेंड करो। कहां पे? P2 पे। तो आपको कुछ चीज, कुछ एक बिट आपको मॉनिटर करते रहना है। तो वो बिट है 1.5, उसको डिक्लेयर करके लो। अब ये इनपुट बिट है तो उसको हाई करके लेना पहले, क्योंकि इनपुट है। व्हाइल वन का यूज करो, क्योंकि हमेशा करते रहना आपको। व्हाइल वन में आपने ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट किया। अब आप इफ कंडीशन लिखते हो, क्योंकि इफ दैट इज वन, डू दिस, एल्स डू दिस, दैट इज द कंडीशन। सो वो कैसे लिखते हैं? इफ, इफ एल्स ग्रू, इफ एल्स कैसे लिखने का देखो, इफ ब्रैकेट माई बिट, मतलब ये वाला 1.5 आपने ऊपर डिक्लेयर करके ले गया, इक्वल टू 1, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। माई बिट इक्वल टू 1, देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स। एक होता है सिंगल इक्वल टू, दूसरा होता है इक्वल टू ऑपरेटर बोलते हैं। पहला वाला असाइन कर देता है और दूसरा वाला कंपेयर करता है। डबल इक्वल टू लिखोगे तो कंपैरिजन हो जाएगा, वो असाइन नहीं करेगा वन। माई बिट, इस बिट को माई बिट करके जो अपने बिट असाइन बिट डिक्लेयर किया है 1.5 को, उसको वन असाइन नहीं करेगा, वन उसमें स्टोर नहीं करेगा। वो क्या करेगा? माई बिट को एक के कंपेयर करेगा। एक के साथ कंपेयर करेगा मतलब वो हाई है कि नहीं वो चेक करेगा। तो माई बिट इक्वल टू 1, P इज इक्वल टू, अभी सिंगल इज इक्वल टू लिखा है देखो सेकेंड इसमें, सिंगल P इज इक्वल टू 55। इसका मतलब है जब तक वो हाई है तब तक 55 दे दो, नहीं तो AA भेज दो। कहां पे भेजो? P2 पे भेजो। दिस इज असाइनमेंट ऑपरेटर। दिस इज हाउ you assign
मतलब जीरो सिंगल इक्वल टू मतलब असाइन करना, डबल इक्वल टू मतलब कंपेयर करना. तो दिस इज व्हाट यू हैव स्टडीड समथिंग न्यू इन दिस प्रोग्राम. तो ये सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स है सी प्रोग्रामिंग के. रिमेंबर ये कैसे होता है. नेक्स्ट प्रोग्राम जो है दैट ऑल्सो यू प्लीज स्टडी योरसेल्फ एंड कम प्रिपेयर्ड फॉर टुमारोज लेक्चर. वी आर एसएफआर है, वो एसएफआर भी हम लोग कल देखेंगे. एसएफआर जो डेटा टाइप है वो एक एड्रेस के लिया हुआ है उन्होंने. एसएफआर डेटा टाइप यहाँ पे आप देख सकते हो. एसएफआर 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 लिया हुआ है. वो पोर्ट डिक्लेरेशन के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं. ये पोर्ट से करके उसको एसएफआर करके डिक्लेयर किया हुआ है. So that is SFR. So you can go through all this till कौन से स्लाइड में बता रहा हूं आपको. ओके, लॉजिकल ऑपरेशंस भी आप एक बार देख लो. एंड टुमारो ऑल्सो वी विल डिस्कस दिस इन द क्लास. सो हियर आई स्टॉप. Just mention your attendance there on the WhatsApp group पे. Please mention your attendance. Write present, present, present. Don't give me excuse such that your mobile got turned off at the last moment and that is why you wrote present after half an hour. I will not consider that as your presentee. Write and write away. Now only you write present on the WhatsApp group. Then only you will be marked present. So thank you so much. Good night, everyone.